Question number 10. So here black and red die are rolled. Two dice are there. So throwing two dice. है ना? Our random experiment is throwing two dice. Throwing two die simultaneously. So first we are throwing black die and then we are throwing red die. तो पहला जो आएगा वो ब्लैक डाई का नंबर आएगा, दूसरा जो आएगा वो रेड डाई का नंबर आएगा. तो throwing two dice simultaneously. That is our random experiment. So total number of possible outcomes है ना, सारे आउटकम्स लिखेंगे 36 होंगे. अभी वो हम नहीं लिख रहे हैं, अभी हम सिर्फ लिख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस विच आर 36. अगर जरूरत पड़ी तो हम उसका नोट डाउन करेंगे. सो टोटल नंबर ऑफ outcomes in throwing two dice simultaneously. First we are throwing black die and then we are throwing red die. So total number of outcomes are 36. So question number 1 A, first part, find the conditional probability of obtaining a sum greater than 9. है ना, conditional probability, two events are there, event E and event F. Event F has already been occur, है ना, event F हो चुकी है और event E की probability हमें find करनी है. So find the conditional probability of obtaining sum greater than 9. Sum greater than 9 given that ये हमारी इवेंट हो चुकी है. कौन सी? ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5. तो पहले तो आपको दोनों इवेंट को स्पेसिफाई करना पड़ेगा. सो लेट्स से इवेंट ई एंड इवेंट एफ. व्हाट इज द इवेंट ई? इवेंट ई इज सम ऑन डाई greater than 9. Our event E is sum on die greater than 9. ये हमारी इवेंट E है ना, सम ऑफ, है ना. क्वेश्चन देखो, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग a sum greater than 9. That is our event E. Given that, so this is given that conditional event, given that black die resulted in a 5. So here number on black die is 5. So two events are there. This is our sample space. These are the two events. Now we are writing the sample, or we are writing the samples, or we can say events from sample space. Then total 36 events are there. Out of the 36 events, which are the events or which are the elements of this event E? तो देखो कंडीशन, सम ऑन डाई ग्रेटर देन 9. दोनों जो डाई है उसके ऊपर जो सम आएगा वो 9 से बड़ा आएगा. सो 9 से बड़ा कब होगा? अगर ब्लैक डाई पर 1 2 3 आएगा तो सामने की डाई पर मैक्सिमम 6 आएगा, तो 9 नहीं होगा. 9 लाने के लिए स्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ से, है ना. नंबर ऑन ब्लैक डाई 6 और रेड डाई पर क्या आएगा? नंबर ऑन ब्लैक डाई 4 और रेड डाई पर क्या आएगा? 6. तो ये 10 हुआ. सो फर्स्ट एलिमेंट इज 4 6. उसके बाद 5 5, उसके बाद 5 6 6 4 6 5 and 6 6. These are the outcomes of sample space in which sum is greater than 9. ये सब के आउटकम्स है जिसके सम्स ग्रेटर देन 9 है. देखो ये 10 10 11 10 11 and 12. Now event F, नंबर ऑन ब्लैक डाई इज 5. ब्लैक डाई पर 5 होना चाहिए, तो ब्लैक डाई फिक्स फर्स्ट नंबर 5. रेड पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, रेड पर 3 भी आ सकता है, रेड पर 4 भी आ सकता है, 5 5 एंड 5 6. डन. दिस आर दी पॉसिबल इवेंट्स ऑफ इवेंट, पॉसिबल आउटकम्स ऑफ इवेंट एफ. यहाँ तक क्लियर सबको, है ना. हर एक स्टेप पर कहीं पर भी कुछ भी डाउट आए तो आप अनम्यूट करके डाउट सॉल्व करो. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हाट इज द क्वेश्चन आर्यन? फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9 given that black die resulted in 5. So here we have to find P of E by F, है ना. P of E by F निकालना है. इसका फॉर्मूला में पता है, इट्स अ P of E intersection F upon
P of F. So P of E intersection F is nothing but the number of elements in E intersection F upon number of elements in F. Now check how many common elements are there between E and F. दोनों के बीच में कॉमन क्या क्या आ रहा है देखो. फर्स्ट एलिमेंट 5 होना चाहिए, तो फर्स्ट एलिमेंट 5, ये दोनों ही है देखो, 5 5 5 6. इसके अलावा कुछ कॉमन दिख रहा है? नो. So only two elements are common. So it's a 2. Total number of elements in F 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 by 6, and that is equal to 1 by 3 is the answer. Clear? चलो पार्ट बी. नाउ रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, है ना. क्वेश्चन रीड करना है और डेटा एक्सट्रैक्ट करना है. आंसर लिखने में टाइम ज़्यादा नहीं जाएगा. लॉजिक पार्ट पर ज़्यादा फोकस करो. फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम 8. Find the conditional probability of obtaining sum 8. So here or event E, first you have to define the event. Sum of number is 8, है ना. Sum of number is 8. Given that red die resulted in number less than 8. Red die resulted in number less than 4. तो अभी इवेंट ई में हमें फाइंड करनी है. सो इवेंट ई पॉसिबल आउटकम्स, सम ऑफ नंबर इज 8, है ना. सम 8 आना चाहिए. तो ब्लैक पर कौन सा नंबर आएगा मिनिमम? 6 लेंगे तो सामने 1 आएगा, तो 7 ही होगा. 6 के साथ 2 लेंगे तो 8 आएगा, है ना. तो ब्लैक से मिनिमम नंबर से स्टार्ट करें ना, तो 1 के साथ कुछ नहीं आ सकता. 2 से स्टार्ट करें तो 2 के साथ 6 आएगा. इसके साथ 3 के साथ 5 आएगा. उसके बाद, है ना, नंबर इक्वल टू 8, तो 3 5 हो गया. उसके बाद 4, तो 4 4 8 होगा. उसके बाद 5 3, ये भी 8 होगा. इसके बाद 6 2, ये भी 8 होगा. सो सम ऑफ नंबर ऑन डाइस इज 8. तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट इन ई 1 2 3 4 5 5 हो गया. एफ रेड डाई रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 4. रेड डाई पर नंबर है वो लेस देन 4 होना चाहिए, है ना. लेस देन 4, तो कितनी पॉसिबिलिटी है? इट कैन बी 1, इट कैन बी 2 और इट कैन बी 3, है ना. 1 2 एंड 3. और ब्लैक पर कौन से आएगा? ब्लैक पर टोटल 6 पॉसिबिलिटीज आर देयर, है ना. ब्लैक पर 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 6 आ सकता है. और रेड पर कितने चाहिए? लेस देन 4, तो यहाँ पर 1 2 3 आ सकता है. तो टोटल इवेंट लिखेंगे तो टोटल कितने आउटकम होंगे? 18 होंगे. यस और नो, है ना. रेड नंबर रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 4. रेड पर लेस देन 4 होना चाहिए. तो ब्लैक पर तो कोई कंडीशन नहीं है, तो ब्लैक पर होगा 1, ये 1 1. उसके बाद 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, है ना. 1 2 3. इसके बाद ब्लैक पर 2 आएगा. सो 2 1 2 2 2 3. उसके बाद 3 लेंगे तो 3 1 3 2 3 3. अब टू कहाँ तक? 6 तक. तो 6 1 6 2 6 3, है ना. टोटल 18 आउटकम्स आर देयर. इज दैट क्लियर? टोटल 18 आउटकम्स इन इवेंट एफ, है ना. 18. अभी दोनों में कॉमन क्या आएगा देखो? कॉमन रेड पर जो नंबर है वो क्या है? लेस देन 4. तो एक ये आ गया और ये क्या आ गया. डन. सो टोटल नंबर ऑफ कॉमन इवेंट्स ई एंड एफ आर 2. तो यही फॉर्मूला आने वाला है पूरा. डन. ये फॉर्मूला यहाँ तक. यहाँ पर ई एंड एफ में कॉमन इवेंट, सो 2 इवेंट्स आर कॉमन. टोटल नंबर ऑफ इवेंट इन एफ 18 है. सो 18, इट्स a 1/9 आंसर. अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? So now next question number 11. Question number 11. Here
of Faraday's rule, consider the events. So events are 135, event F 23, event G 2, 3, 4, 5. So first question, these are the three given events. Question 1. Question 1, find P of E by F and P of F by E. है ना, वन आफ्टर अनदर फाइंड करते चलो. P of E by F तो क्या होगा? इट्स अ P of E intersection F upon P of F. This is equal to number of elements in E intersection F upon number of elements in F. So how many common elements are there between E and F? देखो E and F दोनों इवेंट में कॉमन कितने हैं? Only one element. So number of elements which are common between E and F equal to 1 upon number of elements in F 2. 1 by 2 is the answer. Clear students? दूसरा फाइंड करना है P of F by E. P of F by E. It's a P of F by E. P of F by E upon P of F. So this is equal to N of F by E upon N of F. Done? Now again, number of elements which are common between F and E. Only one element is common. और यहाँ पर E था ना, N of E. So number of elements in E. How many elements are there? 3. So our P of F by E is 1 by 3. Understood? Okay. Second part है ना, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट है. So part 2. Now we have to find P of E by G. इसके बाद फाइंड करना है P of G by E. P of G by E. So P of E by G, that is equal to P of E intersection G upon P of G. This is equal to number of elements in E intersection G upon number of elements in G. तो बोलो how many common elements are there between E and G? E and G ये दोनों के बीच में common elements 1 3 5 2 3 5. So 3 5 is the common element. Two common elements are there. Number of elements in G 1 2 3 4. 4 elements are there. This is equal to 1 by 2. Done? So our answer P of E by G is 1 by 2. इसके अंदर दूसरा पार्ट P of G by E. P of G by E करना है. सेम फॉर्मूला है ना, सारे सम्स करने हैं. जैसे आपका फॉर्मूला है वो एकदम आपको याद रह जाएगा. G of G by E, so it's G intersection E upon P of E. Now tell me number of common elements between G and E and number of elements in E. Number of elements in G and E 3 5 3 5 2. Number of elements in E 3. So our answer P of G by E is 2 by 3. Clear? Next question, third part ना, थर्ड देखो थोड़ा, थर्ड इज इम्पोर्टेंट. Third, here P of, we have to find P of E union F by G.
नहीं, ये फाइंड करना है, पी ऑफ ई यूनियन एफ बाई जी। सो इसका फॉर्मूला है ना, इसका क्या होगा, इट विल बी पी ऑफ, है ना, सिर्फ आप यूनियन को कंसिडर करो, एन ऑफ ए यूनियन बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इट्स एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी यूनियन की जगह पर डिवाइड बाई जी दिया है, तो यहाँ पर आएगा डिवाइड बाई जी, यहाँ पर डिवाइड बाई जी और यहाँ पर डिवाइड बाई जी। डन। और ए और बी की जगह पर ई एंड एफ है, तो क्या होगा फॉर्मूला देखो, इट्स एन ऑफ ई बाई जी प्लस, है ना, पहले प्रोबेबिलिटी कंसिडर करो, पी ऑफ प्लस पी ऑफ एफ बाई जी माइनस पी ऑफ ई यूनियन एफ, इंटरसेक्शन आएगा ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी, ये होगा, है ना, यहाँ पर इंटरसेक्शन साइन है। इज दैट क्लियर? ई बाई जी एफ बाई जी एंड पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी, ये हमने डिराइव किया, इसको डिराइव करना पड़ेगा, है ना, ये हमने डिराइव किया, देखो ई बाई जी एफ बाई जी, कहाँ पर डिराइव किया, ई बाई जी एफ बाई जी, ई बाई जी डिराइव किया हो, लेकिन एफ बाई जी डिराइव करना पड़ेगा। डन। तो ये तीनों डिराइव करना है। सो व्हाट इज पी ऑफ एफ बाई जी, पी ऑफ एफ बाई जी इक्वल टू पी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन पी ऑफ जी। दिस इज इक्वल टू number of elements in f intersection g and number of elements in g। तो f एंड g के बीच में कॉमन एलिमेंट्स, कहाँ गया वो पेपर, ये रहा, f और g में कॉमन एलिमेंट्स 2 3 2 3, 2 एलिमेंट्स आर कॉमन एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन g 4। तो ये हो गया 1/2, है ना, ये हो गया 1/2। और P ऑफ E बाई जी हमारे पास डिराइव किया हुआ ही था, P ऑफ E बाई जी, है ना, ये डिराइव किया था हमने, P ऑफ E बाई जी, वो कितना है 1/2, दिस इज 1/2। ये आ गया, ये आ गया, तो B इसको डिराइव करना है। सो नाउ P ऑफ E बाई F डिवाइड बाई जी, है ना, इसको डिराइव करना है, P ऑफ, ये बड़ा ब्रैकेट आएगा, E बाई एफ डिवाइड बाई जी। तो क्या हो गए, इट्स अ पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी डिवाइड बाई पी ऑफ जी। सो दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी। तो तीनों के बीच में कॉमन एलिमेंट है, देखो तीनों के बीच में कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है, 3 3 3, ओनली 3 इज द कॉमन एलिमेंट, है ना। सो 1 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी 4, 1/4। तो 1/2 प्लस 1/2, है ना, 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/4 इज द आंसर। सो नाउ और क्वेश्चन इज, ये फाइंड करना था P ऑफ E यूनियन F डिवाइड बाई G एंड दैट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/4, 1/2 प्लस 1/2 1 माइनस 1/4, this is equal to 3/4, 3/4 is the answer। clear students? और दूसरे पार्ट में आपको ये इंटरसेक्शन एफ बाई जी फाइंड करना है, तो ये तो हमने डिराइव कर दिया है, तो वो आंसर आएगा 1/4, है ना। ये दूसरा पार्ट है, ये दूसरे पार्ट की रिक्वायरमेंट फर्स्ट पार्ट में थी, तो हमने डिराइव कर लिया है ना, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी, तो वो आंसर आएगा 1/4। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। डन स्टूडेंट्स, कुशल, ओके चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 12 देखो, assume that each born child is equally likely to be a boy or girl। each born child is equally likely, है ना,
It can be boy or girl. If family has two children, what is the conditional probability that both are girls? We have to find the probability, conditional probability that both are girls. Given that, first question, the youngest is a girl, and second part, at least one is a girl. So family is given, two children are there. So first we are writing the sample space, different possibilities, सैंपल स्पेस है ना. तो कहीं पर ऐसा होगा कि आप सैंपल स्पेस लिख पाएंगे, कहीं पर आपको ऐसा लगेगा कि आपको थोड़ी आलस आ रही है कि नहीं लिखना है, और कहीं पर ऐसा होगा कि आप सैंपल स्पेस लिख ही नहीं पाएंगे. तो जो आपको अच्छा लगे वो आपको करना है ना. आपका अल्टीमेट आंसर आना चाहिए. तो यहाँ पर सैंपल स्पेस थोड़ा इजी रहेगा. सो फैमिली हैज each born child is equally likely to be a boy or girl, and family has two children. So here we can write this sample space. For example, if family has two children in which first one is boy, second one is also boy, है ना. तो पहला जो है वो होगा आपका एल्डर ना, एल्डर ब्रदर, और सेकंड जो है वो होगा आपका यंगर, एल्डर चाइल्ड एंड यंगर चाइल्ड. तो फर्स्ट बॉय, तो उसके बाद सेकंड भी बॉय. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है? फर्स्ट बॉय देन सेकंड गर्ल. थर्ड पॉसिबिलिटी, फर्स्ट गर्ल उसके बाद बॉय. और फोर्थ पॉसिबिलिटी, बोथ आर गर्ल, है ना. बड़े भाई छोटे भाई, बड़ी सिस्टर नहीं, बड़ा ब्रदर छोटी सिस्टर, sister and brother, and sister. Total 4 possibilities are there. And this is our sample space. Now read the question. If a family has two children, what is the conditional probability that both are girl? ये हो गया. What is the probability that both are girl? Event E and event F. We are talking about the first part. First part is youngest is a girl. Question is conditional probability that both are girl. So event E, both are girl, है ना. पूरा क्वेश्चन रीड करो. इफ द फैमिली हैज टू चिल्ड्रन, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल? यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ई व्हेन both children are girls. So both are girl. Condition that first case, youngest is a girl, youngest child is girl, है ना. यंगेस्ट चाइल्ड गर्ल होनी चाहिए और दोनों चाइल्ड गर्ल होने चाहिए. ऐसी इवेंट की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो पहले तो इवेंट ई के आउटकम्स लिखेंगे. बोथ आर गर्ल्स कितने हैं? ओनली वन. बोथ आर गर्ल्स, है ना. गर्ल्स ये होते हैं जी. बोथ आर गर्ल्स. एंड आउटकम्स ऑफ इवेंट एफ, यंगेस्ट चाइल्ड इज गर्ल, यंगेस्ट चाइल्ड इज गर्ल. तो दूसरा जो है वो यंगेस्ट है, तो ये यंगेस्ट चाइल्ड गर्ल है. यहाँ पर भी यंगेस्ट चाइल्ड गर्ल है. तो इट्स a BG and GG. Two outcomes are there. Done. So now we can find the probability of event E. Both are girls and given that youngest child is girl, है ना. फैमिली के अंदर आपको ऐसे गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसके पास यंगेस्ट चाइल्ड गर्ल है और दोनों गर्ल्स होनी चाहिए. So it's a P of E by F upon P of F. This is equal to number of elements in E intersection F and number of elements in F. So common elements E and F common elements कितने हैं? Only one. So only one common element. Number of elements in F, 2 elements. So our answer is 1/2. Done. Any doubt? है ना. एक एक वर्ड पर फोकस करो. सेकेंड केस सेम, है ना. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स. सो इवेंट ई, बोथ आर गर्ल्स, कंडीशनल इवेंट इज चेंज, है ना. बोथ आर गर्ल एंड कंडीशन इज एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, एटलीस्ट one is a
girl. At least one is a girl. Both are girl. Only one outcome. GG. At least one is girl. What is the meaning of at least? मिनिमम वन गर्ल शुड बी देयर, है ना. मिनिमम वन का मतलब होता है एक, एक से कम नहीं, एक से ज्यादा चलेगा. लेकिन क्वेश्चन में दिया है मैक्सिमम 2 चाइल्ड आर देयर, है ना. 2 ही चिल्ड्रन है तो मैक्सिमम 2 तक जा सकता है. और मिनिमम एक, कितने केसेस आएंगे देखो यहाँ से. एटलीस्ट वन गर्ल, गर्ल होनी चाहिए. तो यहाँ पर दोनों बॉयज है तो ये नहीं आएगा. एटलीस्ट वन गर्ल आ गई, एटलीस्ट वन गर्ल आ गई, दोनों गर्ल है तो भी चलेगा. सो टोटल आउटकम्स BG, GB and GG. Total 3 possible outcomes are there. So probability P of E by F equal to P of E intersection F upon P of F. है ना, ये सब सेम ही है और एक बार लिखना है. बोलो क्या होगा. Common elements between them. Common elements between these two events E and F is only 1 upon total number of outcomes in event F, 1, 2 and 3. So our answer is 1 by 3. Done? आ गया समझ में. कुशल, आर्यन, जैविक, इसके बाद कोई महानुभाव. कितने हैं? 3-4 है कि नहीं है? अरे वाह. 13. 7 में से एक मैं खुद, उसके बाद एक कंट्रोल रूम, उसके बाद एक कोस्ट, 4 ही स्टूडेंट है. 2 ओके सरस. चलो क्वेश्चन नंबर 13. एंड इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक. है ना, क्वेश्चन बैंक की जरूरत पड़ती है जब एग्जाम आती है. So question bank, that question bank consists of 300 easy true false question. देखो ये डेटा आपको पहले लिखना पड़ेगा. So number of true false easy true false question. Question bank consists of easy true false question 300 easy true false questions are there. 200 difficult इजी और उसके बाद डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन. डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन कितने हैं? 200. ये हो गया ट्रू फॉल्स. उसके बाद 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ, है ना. MCQ भी 2 टाइप के हैं, इजी एंड डिफिकल्ट. सो इजी MCQ एंड डिफिकल्ट MCQ. So how many easy MCQs are there? 500 easy multiple choice questions are there. 500. And difficult कितने? 400 difficult multiple choice questions. 400 difficult multiple choice questions. 2 types of questions are there, easy and difficult, and also another 2 different types, true false and MCQ are there. So that data is given. Now आगे बढ़ो. If a question is selected at randomly from the question bank, है ना, पूरी क्वेश्चन बैंक के अंदर इतने सारे क्वेश्चन हैं. नाउ वी हैव टू सिलेक्ट वन क्वेश्चन रैंडमली फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक. रैंडम सिलेक्शन, है ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट इज देयर. तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, यहाँ तक समझ में आ गया. अभी लास्ट लाइन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? इवेंट ई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी F. सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी that it will be an easy question, है ना. Selected question is easy. Selected question is easy. What is the probability that it will be easy question? We are selecting one question from the question bank and we have to find the probability of selecting easy question given that conditional event. What is given? Given that it is multiple choice question. So selected question is multiple choice question, है ना. MCQ, selected question is MCQ. ये फाइंड करना है. बोलो क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ गया तो सॉल्यूशन भी आ जाएगा. We have to find the probability of selecting easy question given that
सिलेक्टेड क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि आपको टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें से, है ना, जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें से इजी क्वेश्चन सिलेक्ट करना है ना, सिंपल लॉजिक समझ में आया। आपको एक इजी क्वेश्चन सिलेक्ट करना है और गिवन दैट इट इज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने हैं, 500 प्लस 400 900, उसमें से इजी क्वेश्चन सिलेक्ट करना है 500, आंसर इज 5/9। लेकिन ऐसे लिख नहीं देना है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करना है। आंसर तो आ गया 5/9, लेकिन यूज कैसे करें, तो लिखो इवेंट्स सिलेक्टेड क्वेश्चन इज इजी। सो सिलेक्टेड क्वेश्चन इज इजी, हाउ मेनी इजी क्वेश्चंस आर देयर, 1 and 2, है ना, टोटल 800 easy questions are there, 500 plus 300, so number of elements in E 800 होगा। number of elements in F, selected question is multiple choice question, multiple choice question कैसे है, number of elements in F 900, है ना, यहाँ पर हम लिस्टिंग नहीं कर पाएंगे, 900 का लिस्टिंग कहाँ पर, कौन से क्वेश्चन है क्या पता है। so now question is find the probability of E by F, selected question is easy given that selected question is multiple choice question, P of E by F, so P of E by F, that is E intersection F divided by P of F। तो बोलो E and F दोनों के बीच में कॉमन, ये दोनों के बीच में कॉमन क्या आएगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन इज इजी, सिलेक्टेड क्वेश्चन इज इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सो इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 500, देखो 500 आया, डन, अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F, selected question is multiple choice question, how many multiple choice question are there, 900, so our answer is 5/9, this is the solution, understood। पक्का एग्जाम में आएगा, है ना, यही एग्जाम में आने वाला है, बोर्ड की एग्जाम में, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन नंबर 14 says given that, देखो given that conditional event is given in the first statement, फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको दे दिया है कंडीशन, given that two numbers appear on a throwing two die are different, so what is our random experiment, random experiment is throwing two dice simultaneously, so throwing two dice simultaneously, total number of outcomes are 36, अभी वो लिखना नहीं हमें, है ना, and two events are there E and F, or F is conditional event and conditional event is number appears on two dice are different होने चाहिए, तो बोलो 36 में से ऐसे कितने आउटकम होंगे जिसके अंदर जो नंबर्स आ रहे हैं वो डिफरेंट है ना, ये देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6 आर द इक्वल आउटकम्स, है ना, डाई 1 पर भी 1 आएगा, डाई 2 पर भी 1 आएगा, दैट इज 1 1, है ना, सिमिलरली 2 2, तो ऐसे 6 आउटकम्स आपको निकाल देने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F आपको मिलेंगे 30, इन विच टोटल आउटकम्स आर डिफरेंट, है ना, वो 30 आप नोट कर सकते हो यहाँ पर अगर आपके पास टाइम है तो, हमारे पास नहीं है, अभी 840 हो गया, तो ये मैंने 30 लिख दिया है ना, जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे, आगे बढ़ो। टू नंबर्स आर डिफरेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सम ऑफ नंबर ऑन डाई इज 4, है ना, ये लिखना पड़ेगा, सम of numbers, sum of numbers on the die, sum of the number on the die is 4, तो बोलो 4 सम आना चाहिए, वैसे आउटकम लिखने हैं, तो 1 होगा तो उसके साथ 3 आएगा तो 4 हो जाएगा, 2 होगा तो 2 के साथ 2 आएगा तो भी 4 होगा, 3 होगा उसके साथ 1 आएगा तो भी 4 होगा, है ना, 4 होगा उसके साथ 0 आएगा तो भी 4 होगा, लेकिन वो नहीं आ सकता, so 1 3 2 2 3 1, total 3 possible outcomes are there, is that clear, और F के सारे आउटकम्स आपको अगर लिखना है तो आप लिखेंगे, है ना, 1 1 नहीं आएगा, 1 2 1 3 1 4 से लेके 1 6 तक, उसके बाद 2 1 2 2 नहीं आएगा, 2 3 से लेके
2 6 है ना, ऐसे करते करते 6 तक जाएंगे, 6 1 6 2 से लेके 6 5 तक 6 6 नहीं आएगा है ना, सेम नंबर नहीं आने चाहिए। तो ये हो गए टोटल 30 आउटकम्स और ये हो गए 3 आउटकम्स। फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बाई एफ है ना, पी ऑफ ई बाई एफ अपॉन पी ऑफ एफ, ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई बाई एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। तो बोलो बच्चों कौन से कॉमन आउटकम्स है? इक्वल नहीं होने चाहिए है ना, तो ये तो नहीं होगा कॉमन, तो 1 3 भी आएगा, देखो ये रहा 1 3 और 3 1 भी आएगा, यहाँ पर आएगा 3 1 करके करके यहाँ पर है ना। So to total 2 common outcomes are there upon total number of outcomes in F कितने हैं 30, so that is equal to 30 और इसका आंसर आएगा 1/50। क्लियर? इज दैट क्लियर? पक्का? ओके चलो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दैट इज फॉर रूम नंबर 15। चलो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको निगलेक्ट करो है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15, consider the experiment of throwing a die throw करना है। So total number of possible outcomes in throwing a die, 6 outcomes are there, 1 2 3 4 5 6। Now what we have to do, consider the experiment of throwing a die। if the multiple of 3 comes है ना, डाई थ्रो करेंगे तो आउटकम्स कौन से आएंगे 1 2 3 4 5 6, total 6 possible outcomes are there। now we are given that if multiple of 3 comes, that means multiple of 3 and this one 6, if these two numbers comes on a die, then throw die again, आपको die फिर से थ्रो करना है, डन, throw die again, and if any other number comes, any other number means 1 2 4 and 5, if any other number comes, toss a coin, आपको coin toss करना है। so total number of outcomes देखो कैसे होंगे, सैंपल स्पेस एस, आपको एक डाई थ्रो करना है तो उसमें आउटकम्स आएंगे 1 2 3 4 5 6। अगर मल्टीपल ऑफ 3 एंड 6 आते हैं है ना, मल्टीपल ऑफ 3 आते हैं, दैट मीन्स 3 एंड 6 आउटकम आता है, तो आपको फिर से आपको डाई थ्रो करना है। और इसके अलावा 1 2 4 5 नंबर आता है तो आपको क्या करना है, एक कॉइन टॉस करना है। सपोज 1 आ गया तो आपको फिर से एक टॉसिंग करना है, तो कॉइन टॉस करेंगे तो आ सकता है टेल या फिर हेड, सो 1T 1H, डन। उसके बाद सपोज 2 आ गया, अगेन आपको कॉइन टॉस करना है, इट में बी 2T और 2H। उसके बाद सपोज 3 आया तो क्या करना है, फिर से आपको कॉइन टॉस करना है, सॉरी डाइस थ्रो करना है, सो इट्स 3 1 है ना, या फिर 3 2 और 3 3 और इट कैन बी 3 4 3 5 और इट कैन बी 3 6 है ना। 3 आया तो फिर से आपको डाई और जो डाई वो थ्रो करना है, तो 3 के साथ 1 आ सकता है, इट कैन बी 2 इट कैन बी 3 4 5 अप टू 6। उसके बाद 4 आया तो अगेन कॉइन टॉस करना है, सो 4T 4H, 5 आया तो भी टॉसिंग, 5T 5H, 6 आया तो अगेन वी हैव टू थ्रो द डाई, it can be 6 with 1 6 with 2 6 with 3 6 4 6 5 6 6, done। So these are the total possible outcomes in our sample space, count it 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, total number of outcomes are 20। is that clear? ये outcomes है। now read the question। Consider the experiment of throwing a die, multiple of 3 comes up, throw die again, and if other number is there, toss the coin। now find the conditional probability of event, conditional probability of event, 2 events are there, E and F। so here we have to find the conditional probability of event E, coin shows a tail, the coin shows a tail,
है ना। तो कॉइन के ऊपर टेल आना चाहिए, देखो कहां पर है, हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर, 1 2 3 4, टोटल 4 आउटकम्स आर देयर, है ना, 1t 2t 4t and 5t, total 4 outcomes are there in event E. Given that at least one die shows 3, conditional event F, at least one die shows 3, at least one die shows 3, एक डाई पर 3 होना चाहिए। देखो कितने आउटकम्स है, 3 आर 1 2 3 4 5 6, ओनली 6 आउटकम्स आर देयर, वो आपको लिखना है यहाँ पर। इसके अलावा 3 है कहीं पर, नहीं है। सो 3 1 3 2 up to 3 6, total 6 outcomes are there. Now we have to find the probability of event E by F, P of E by F, that is equal to P of E by F upon P by F. Now tell me common events between E and F. Is there any event which is common between this E and F? 1t 2t 4t 5t, यहाँ पर तो t है ही नहीं, so 0 event is common between this E and F, and number of elements in F 6, 0 by 6 is the 0, is the answer. Is that clear, students?